ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ. Shining in the Dark. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائننگ ان دی ڈارک پروگرام میں مجھے کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں شائننگ ان دی ڈارک پروگرام میں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کسی نئے شائننگ سٹار کی ملاقات کرواتے ہیں. آج بھی ایسے ہی ایک شائننگ سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بلوچستان کے ایک علاقے سبی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ قوت بصارت سے محروم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے. شائننگ ان دی ڈارک کے ہمارے آج کے مہمان ہیں علی احمد. چلتے ہیں ہم علی احمد سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں علی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. علی آپ آج مہمان ہیں ہمارے شائننگ ان دی ڈارک پروگرام کے اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت. جی میں اس وقت 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ. اور بلائنڈ اسکول میں جو ہے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. کمپلیکس برائے خصوصی تعلیم. علی آپ کو یہ بلائنڈ اسکول کا کہاں سے پتہ چلا؟ مجھے اسکول کے جو ہے کسی ٹیچر نے بتایا. دراصل مسئلہ یہ کہ پہلے میں پڑھتا تھا سبی کے بلائنڈ اسپیشل ایجوکیشن میں، تو وہاں جو تھا وہ پڑھائی کا سسٹم کوئی بھی نہیں تھا، بریل سسٹم بھی نہیں تھا. تو وہاں ایک رحم دل ٹیچر آ گئے تو انہوں نے بس یہ بتا دیا کہ بلائنڈ اسکول بھی ہوتا ہے، بلائنڈ بھی پڑھ سکتے ہیں. ورنہ ہمیں تجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بلائنڈ پڑھ سکتے. علی ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انتہائی سریلی آواز دی ہے اور آپ بہترین نعتیں پڑھتے ہیں اپنے اسکول کے لیے بھی، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ متعدد جو ہے وہ مقابلہ نعت بھی جیت چکے ہیں، ان کا صحرا اپنے نام کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے پہلے تو آپ احوال بتائیں کہ کتنے مقابلے آپ نے جیتے اور کس طرح ان مقابلوں میں آپ گئے. میں دراصل جب بلائنڈ اسکول میں آیا تو میں شروع سے ہی، مجھے بچپن سے ہی شوق ہے کہ نعتیں پڑھنے کا. تو تقریباً میں 7 سال کا تھا تو میں نعتیں سنتا تھا اور جس طرح سنتا تھا اسی طرح جو ہے سنا دیتا تھا. تو 7 سال سے یہ تقریباً میرا سلسلہ جاری ہے. اچھا علی کتنے مقابلے اب تک آپ اپنے نام کر چکے ہیں اور کہاں کہاں نعتیں پڑھ چکے ہیں آپ جا کے؟ ایک مقابلہ جو ہے پورے کوئٹہ کا تھا جس میں جو ہے فرسٹ پوزیشن میں نے حاصل کی ہے. ماشاءاللہ. تو پورے کوئٹہ سے تقریباً 20-25 لوگ تھے جن میں سے جو ہے اول نمبر. باقی سارے نارمل یعنی صاحب بصارت لوگ تھے، ایک آپ ہی بلائنڈ تھے ان نعت خوانوں میں؟ جی جی باقی جو ہے بلائنڈ نہیں تھے. اچھا علی ہماری نالج کے مطابق آپ غالباً اسلام آباد میں بھی ایک نعتیہ مقابلہ میں حصہ لے چکے ہیں، ایسا ہے؟ جی پہلے جو ہے میں نے کوئٹہ سے جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، پھر جو ہے صوبائی لیول پہ یعنی پورے بلوچستان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اور آل پاکستان میں جو اسلام آباد میں گیا تھا تو اس میں تقریباً میں نے جو ہے 3ری پوزیشن. ماشاءاللہ زبردست. علی ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ 1-2 اشعار نعت کے سنا دیں. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب
Shining in the dark. माशाल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। नाजरीन, देखा आपने मुल्की सतह पर और सूबाई सतह पर, ज़िलाई सतह पर मुकाबले जीतने वाला ये बलूचिस्तान के एक इंतहाई छोटे से शहर सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाला नाबीना तालिब इल्म कितनी खूबसूरत आवाज़ का मालिक है और क्या खूबसूरत सुर इन्होंने लगाए। बहरहाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि निज़ाम ख़ुसूसी तालीम के ज़रिए आप इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और जमात दहम के तालिब इल्म हैं। इसके बाद जब दहम का इम्तिहान आप पास करके निकलेंगे तो आप क्या ख़याल करते हैं, कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे और किस तरह पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मैं हुकूमती सतह पर ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे जो ब्लाइंड भाइयों के लिए ब्रेल प्रेस का जो है आगाज़ शुरू होना चाहिए, क्योंकि ब्रेल बुक्स हमारे पास मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ब्लाइंड जब कॉलेज सतह पर जाते हैं तो उनको लैपटॉप की ज़रूरत होती है, तो लैपटॉप भी जो है मतलब उनको प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप जैसे कि बता रहे हैं कि कॉलेज सतह पे आपको जाके लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेल बुक्स की जो है वो अदम दस्तयाबी है बलूचिस्तान में। जैसा कि हमारी नॉलेज के मुताबिक है, शाइनिंग इन द डार्क की टीम और हमारे इंटरनल विजन ऑफ द ब्लाइंड की टीम के बलूचिस्तान में ब्रेल बुक्स की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है, नाबीना अफराद बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो आप चाहते हैं कि लैपटॉप आपको मुहैया किया जाए ताकि आप बुक्स को स्कैन करके रीड कर सकें, ऐसा ही है? जी सर। अच्छा अली, कॉलेज में आप क्या चाहेंगे कि नॉर्मल कॉलेज में जाके पढ़ेंगे या ब्लाइंड कॉलेज ही आप मुल्क में कहीं और ढूंढेंगे या यहीं पे बलूचिस्तान के किसी ब्लाइंड कॉलेज में जाएंगे? क्या आप ख्याल रखते हैं इस मामले में? सर मेरा इरादा तो ये है कि इंशाल्लाह नॉर्मल कॉलेज में पढ़ेंगे, और क्योंकि सिब्बी से मेरा ताल्लुक़ है तो मेरा इरादा यही है कि सिब्बी में जो है इंशाल्लाह कॉलेज पढ़ूँ मैं। सिब्बी में? जी हाँ, सिब्बी में डिग्री कॉलेज है और बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। अच्छा अली, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि आप साइटेड बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं आसानी से? जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी हेल्प भी करेंगे, हर तरह से आपको गाइड भी कर सकते हैं। जी सर। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के अली आप? बनने की ख्वाहिश तो मेरी जो है नात ख़्वाह है इंशाल्लाह। तो सबसे पहला तो मेरा शौक़ यही है। पढ़ाई के हवाले से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर टीचर बनने का शौक़ है वैसे मुझे। कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं आप? जी सर। ज़बरदस्त। अली, हमने ये भी सुना है कि आप स्कूल के लिए मिली नगमे पढ़ते हैं स्कूल के प्रोग्रामों में, तो अगर एक छोटा सा मिली नगमा, एक शेर हमें मिली नगमे का, किसी भी नगमे का सुना दें। अक्सर जो मुझसे फरमाइश की जाती है वो है शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। Shining in the dark. कोई भी ऐसा काम न आए जिसमें पाकिस्तान न आए, रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम न आए, इस मिट्टी को हाथ लगा के माथे पर ये खाक लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले जात लगा के, बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा।
ज़बरदست अली, बहुत खुशी हुई आपसे मिल के, आपसे बात करके। आप वाकई शाइनिंग स्टार हैं। हमारे शाइनिंग इन द डार्क प्रोग्राम में आपके आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, अली से हमने बात की और अली की नात भी सुनी, अली का नगमा भी सुना और अली की ख्वाहिशात, अली के ख्वाब भी सुने। अली भी हमें वही मसला बताते हुए नज़र आए जो हमें दीगर हमारे मेहमानान बताते हैं, सहूलियात की कमी। ब्रेल बुक्स पे अली ने फोकस किया। ब्रेल बुक्स की अदम दस्तयाबी है, ब्रेल प्रेस होना चाहिए। हम शाइनिंग इन द डार्क के इस प्लेटफार्म से, इंटरनल विजन ऑफ द ब्लाइंड के इस प्लेटफार्म से हुकूमत से अपील करते हैं कि बलूचिस्तान में नाबीना अफराद के लिए ब्रेल बुक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फराहम किए जाने चाहिए, ब्रेल प्रेस बनना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह पंजाब में ब्रेल टेस्ट हर साल जो है वो ब्रेल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए मुनक़िद किया जाता है, बलूचिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए और ब्रेल के कोर्सेज़ मुनक़िद होने चाहिए। ब्लाइंड के लिए मखसूस जो निज़ाम तालीम है, जो तहरीर नवीसी का एक वाहिद ज़रिया है ब्रेल, इसको प्रमोट करना चाहिए। बलूचिस्तान में हर आम शहरी को भी पता होना चाहिए कि ब्रेल क्या है और कैसे लिखी और पढ़ी जाती है। ब्रेल के अलावा भी नाबीना अफराद, जो बलूचिस्तान के नाबीना अफराद हैं, उन्हें बहुत मसाइल दरपेश हैं। आप हमारे इन्हीं प्रोग्रामों के सिलसिले में जो हमारे शाइनिंग स्टार्स हमारे पास आएंगे, उनसे जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस नौइयत की मुश्किलात ब्लाइंड अफराद को दरपेश हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।